مجھے اور کچھ نہیں پتا، بس اتنا ہی پتا ہے کہ تمہارا وہ دوست وہاں حور کے ساتھ کھڑا تھا، کافی غصے میں تھی وہ میری دوست کے ساتھ، یقیناً اس نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ مجھے یقین ہے تمہارے دوست بھی تمہارے جیسے ہی ہوں گے، ورنہ وہ اتنے غصے میں نہ ہوتی۔ مجھے واپس آنے میں اتنے زیادہ جلدی تھی کہ میں حور العین سے اس بارے میں کچھ پوچھ نہیں پائی، لیکن میں اس سے پوچھوں گی۔ دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ اس کی چابی گاڑی کی ہی وہ حور کے دوپٹے کے ساتھ پھنس گئی تھی، اور وہ وہیں واپس کرنے جب وہ اس کے پاس گئی تب شاید کچھ ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا ان دونوں میں کیا بات ہوئی۔ لیکن حور زیادہ غصے میں تھی اور وہ آدمی بھی اس عجیب سے انداز میں گور رہا تھا۔ تمہاری اس بے وقوف دوست نے میرے دوست کو تھپڑ مارا تھا، وہ اب اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اب تم جانو اور تمہاری سہیلی، بلکہ نہیں، تمہیں ان سب چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جو باتیں میں نے تم سے پوچھی ہیں وہ کبھی بھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو بشرا ایک نظر اسے شک کی نگاہ سے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ عارف اب واپس ہوتے جانے والا تھا تاکہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ وہ لڑکی حور العین اس کے گھر میں سے نہیں تھی، نہ جانے کیوں کون تھی، بس وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ بشرا کی دوست تھی، اور بشرا اس کی کزن یقیناً اسے چھوڑنے کے لیے گئی تھی، لیکن اس کی ٹینشن اب دور ہو چکی تھی کیونکہ اسے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ کارب شاہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے بس یہ پریشانی تھی کہ وہ لڑکی اس کے گھر کی نہ ہو۔ وہ خود ہی کارب شاہ کی توجہ کے لیے اس لڑکی کا نام بتانے کو تیار تھا، بلکہ وہ تو اس کام میں اس کا ساتھ دینے کو بھی تیار تھا۔ اسے یقین تھا کہ کارب شاہ کو پھنسانا آسان نہیں ہے، اور اگر کارب شاہ بھی پھنس گیا تو اس کا نام لکھے ہی نہیں آئے گا، اور اس سے حور سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اچھا ہوتا یا کچھ برا ہوتا، اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو بس اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کارب شاہ؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ کیا تم مجھے تھپڑ مارنا چاہتے ہو یا اس کی اوقات دکھانا چاہتے ہو دوسرے طریقے سے؟ اگر تمہارا ارادہ اس کو مارنے کا ہے تو نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں عارف، میں جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے آفر کروں گا ایک رات گزارنے کی، اگر سیدھی طرح مانی تو ٹھیک، ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب جب تک مجھے وہ لڑکی نہیں ملتی میں کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ یہ وہ پہلی لڑکی ہے جس نے کارب شاہ کو انکار کیا ہے، اور اب یہ انکار اسے بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ لگتا ہے میرے سامنے ڈرامہ کر کے میرے سامنے بہت پارسا بن جائے گی، لیکن نہیں، اس کی اوقات میں یاد دلاؤں گا، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ تم بس مجھے اس کی ساری انفارمیشن نکال کر دو، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ شراب کا ایک آخری گھونٹ گلاس خالی کر چکا تھا، جبکہ عارف ہاں میں سر ہلاتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت برا کیا تم نے لڑکی، بہت برا، اب تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ وہ نشے میں چور مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، سوچا پتہ نہیں آ جاؤ گی بھی یا نہیں۔ تمہاری کزن کے رشتے کے بارے میں سنا، بہت افسوس ہوا۔ کیسے ٹوٹا رشتہ؟ وہ صبح یونیورسٹی میں نہ جانے کب سے حور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بشرا کو اپنے انتظار میں دیکھ کر اس کے پاس ہی آ بیٹھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھر میں کافی زیادہ ٹینشن تھی۔ یار وہ تو ٹوٹنا ہی تھا کیونکہ آئمہ کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتی، جس کی وجہ سے اسے کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے، اور اس نے یہ بات اپنے ہونے والے شوہر کو بھی بتا دی، جس کے بعد اس نے منگنی توڑ دی اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ 2 دن سے اچھے خاصے تانے سن کر آ رہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس ٹاپک پر بات ختم ہوئی تو آئمہ اسکول کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں نے بھی مامی سے اجازت لے کر یونیورسٹی کی تیاری کی، مگر تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ خیریت تو تھی نہ؟ اس وقت اپنے دماغ سے ہر بات بھلا چکی تھی۔ کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے پرسوں رات کا وہ واقعہ بھی بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اچھی خاصی غصے میں تھی، لیکن اب فی الحال وہ چیز اس کے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی، اس لیے اسے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتے اس کا انتظار کی وجہ پوچھنے لگی۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس رات جب میں تمہیں گھر چھوڑنے گئی تھی تو تم کافی زیادہ غصے میں تھی۔ خیریت تو تھی نہ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ میرے کزن کا وہ دوست بھی کافی زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے تم سے کیا بات کی تھی جب تم نے اسے چابی دی؟ اس رات تو مجھے واپس آنے کی اتنی جلدی تھی کہ تم سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ کل آپی کی رخصتی ہوئی تو سوچا کچھ دن چھٹی کروں گی، یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، پھر ایگزام جتنے قریب ہیں تو اس کی بھی تھوڑی ٹینشن تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی لیکچر مس کر دوں، اسی لیے آ گئی۔ وہ اسے بتاتے ہوئے پھر سے سوال کرنے لگی تھی۔
और इससे कुछ भी छुपाती नहीं थी, इसलिए इस रात जो कुछ भी हुआ इसे साफ साफ बता चुकी। बुशरा को भी अपने कज़न के इस दोस्त पर बेहद गुस्सा आया जो इतना बदतमीज था। यह शक्ल से कितना शरीफ लगता है और अच्छा घर का भी, और बातें और हरकतें देखो इसकी। तोबा, मैं तो खुद बात करूंगी अपने कज़न से। इसके दोस्त की हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरह बात करने की, वो भी हमारे घर के अंदर। बुशरा को बेहद गुस्सा आया था। नहीं नहीं बुशरा, इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी गंदी ज़बान को मैंने इसके मुंह पर मार चुकी हूँ। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेकर, तो खुदा की करम नवाजी है कि इस रात मुझे किसी ने नहीं देखा, वरना बात कहाँ से कहाँ निकल जाती। मैं गुस्से में इस पर हाथ तो उठा बैठी, लेकिन इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये बात तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता और मुझे यकीन है तुम किसी को नहीं बताओगी। इसे बुशरा पर खुद से ज्यादा एतमाद था। इसने हाँ में सर हिलाते इसका हाथ थामा तो वो मुस्कुरा दी। चलो आओ अब क्लास लेने चलते हैं, मैंने सुना है आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो तो उठकर कहने लगी तो बुशरा भी इसके साथ उठकर क्लासरूम की जानिब चली गई। इसकी इन्फॉर्मेशन सारी निकाल चुका था। मैं इस लड़की का नाम होरुलैन है और मेरी कज़न के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरी सारी फैमिली वापस जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अभी तक यहीं पर हूँ। बता भी तो नहीं रहे कि इस लड़के का करना क्या है तुमने। इससे मुलाकात का इरादा रखते हो। आज होटल इसीलिए आया था क्योंकि कारब ने जब से इसे थप्पड़ खाया था तब से इस होटल के कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा था। मुसलसल शराब पीकर इसने अपनी हालत बिगाड़ रखी थी। शायद वो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शराब पीने से मजीद इसका दिमाग खराब हो रहा था। इसके जहन में वो सारे ख्याल आ रहे थे जो नशा करने के बाद आते हैं। उसे बर्बाद कर देना चाहता था, इसका गुरूर तोड़ देना चाहता था। वह इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता था। कारब शाह पहली बार किसी ने हाथ उठाया था जिसकी सजा इसको इसकी औकात याद दिला कर देना चाहता था। वो बताना चाहता था कि इसने कारब शाह पर नहीं बल्कि इसके गुरूर पर हाथ उठाया है। जो कारब शाह को तोड़ता है वो इसे तोड़कर फेंक देता है। हाँ, मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। बताओ मैं इस लड़की से कहाँ मिल सकता हूँ? उसे देखते हुए पूछने लगा। इसकी यूनिवर्सिटी में और तो कहीं भी वो मुमकिन नहीं, क्योंकि जहाँ तक बुशरा मुझे बताया है वो कहीं पर भी आती जाती नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि तुम जानते हो मेरी कज़न भी वहीं पर पढ़ती है। तो मैं अकेले ही जाकर इससे बात करनी होगी। प्लीज़ वहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं करना चाहिए और कम से कम बात मेरी फैमिली तक नहीं आनी चाहिए। वो सब समझाते इल्तिजा कर रहा था, जिस पर कारब मुस्कुराकर इसे देखा। तुम बस मुझे इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस दो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली तक कोई बात नहीं जाएगी। कारब शाह का मामला है, वो इसे अपने तरीके से हल करेगा। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोला तो आरिफ ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर था कि कारब कुछ उल्टा सीधा न कर दे जो पूरे खानदान में इसकी नाक कटवाए। बुशरा इसकी पसंद थी, वो इसे बेहद चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कारब की वजह से इसका और बुशरा का रिश्ता खराब हो। कहीं ना कहीं इसे इस बात का सुकून भी था कि कारब ने एक बार कह दिया कि कुछ गलत नहीं होगा तो कुछ गलत नहीं होगा। ये रही होरुलैन की यूनिवर्सिटी। देखो मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तुमने जो भी करना है खुद करना और मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। मैं बुशरा से मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे खोना नहीं चाहता। और ये लड़की बुशरा की बहुत करीबी दोस्त है। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है इस लड़की से। मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से मेरे और बुशरा के रिश्ते में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए। वो गाड़ी रोकते हुए समझा रहा था और वो अब कारब हाँ में सर हिला गया और बाहर निकल गया। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। यूनिवर्सिटी में लड़कियों का बड़ा हजूम था। लड़कियों की यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ लड़कों का कोई नामो निशान ना था। सिर्फ दो पियोन थे जो अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो इन्हें नज़रअंदाज करता अपनी मतलाशी चेहरे को तलाश करने लगा, जिसके लिए इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो सामने ही आसमानी रंग के हिजाब में बैठी किसी से बातों में मगन थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कदम उठाता इसकी जानिब आया। इसलिए लड़ने झगड़ने या फिर कोई चैलेंज करने नहीं आया था। वो इसके लिए एक और ऑफर लाया था। हाँ, वो इसे अपने साथ एक रात गुजारने की ऑफर देने के लिए आया था। वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, बल्कि किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि पिछले कुछ चंद 6 दिनों में इसकी बेचैनी की वजह सिर्फ इसका इनकार था। इसका यूं इनकार इसके मुंह पर मारना है इसे इतने दिनों से बेचैन किए हुए था। इसीलिए तो वो इस इनकार की वजह मिटाने के लिए आया था। वो सीढ़ियों पर अपने किसी दोस्त के साथ बैठी बातों में मगन थी। लड़कियों की यूनिवर्सिटी में इस तरह लड़के का आना काफ़ी हैरान कुन था। काफ़ी सारी लड़कियां इसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कारब शाह का सारा ध्यान इसी की तरफ था। इसने दूर से किसी लड़के को यूनिवर्सिटी में आता देखा, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी सहेली से बातों में मगन रही।
जब अचानक वो इसके सामने आ रुका, इसका चेहरा पहचानना हूर के लिए मुश्किल हरगिज न था। पहचाना मुझे? वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ली इसके सामने खड़ा सवाल करने लगा। हुरुलैन के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी। वो उठ खड़ी हुई। इसका इरादा वहां से चले जाने का था। वो कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी और ना ही वो इस रात के बारे में किसी को भी पता चलना देने चाहती थी। लेकिन आज वो शख्स इसके सामने यूं आकर खड़ा हुआ तो उसे कारब शाह से खौफ आया था। अगर ये बात मामी या मामू के कानों में पड़ जाती तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। और आजकल तो वो लोग वैसे भी इसे लेकर कुछ खास खुश नहीं थे। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम एक साइड पर आ सकती हो? वो उसे देखकर बोला तो उसके साथ बैठी लड़की जो कब से सामने खड़ी इस खूबसूरत नौजवान को देख रही थी, इसका हाथ हिलाने लगी। क्या तुम जानती हो इसको? इसने कान में सरगोशी की तो इसने फौरन ना में सर हिलाया। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम एक मिनट के लिए साइड पर हो सकती हो? वो फिर से सख्ती से बोला। कारिशा को इंतजार करने की आदत नहीं थी। वो उसके करीब से उठती फासले पर जा खड़ी हुई। किसी किस्म का तमाशा हरगिज नहीं चाहती थी, वरना इस तरह किसी अनजान से बात करना भी इसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। इस रात जो कुछ भी हुआ, कारिशा ने बात शुरू की जब इसने हाथ उठाकर इसे चुप रहने के लिए कहा। मैं नहीं जानती कि आप इस रात क्या बात करने वाले थे, लेकिन आपका अंदाज और आपका गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव बहुत बुरा था। मेरा हाथ इसी वजह से उठा था, लेकिन यकीनन आप माफ़ी मांगने आए होंगे। आईना याद कीजिए कि बात करते हुए हर लड़की आपके चंद कागजों के टुकड़े पर नहीं बैठी होती। यकीनन आपने हर लड़की की तरह मुझे भी अपनी पर्सनल जागीर समझ लिया होगा, लेकिन मेरे थप्पड़ ने आपको बेहतर तरीके से जवाब दे दिया था। आप देखने में काफ़ी शरीफ लगते हैं और शरीफ ख़ानदान के भी हैं, तो बेहतर है कि अपने ख़ानदान की इज्जत को यूं नीलाम ना करें और आइंदा ऐसा कुछ भी कहने और करने से पहले 1000 बार सोचें। वो अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से जाने लगी, जबकि कारी पहले तो गुस्से से देखता रहा, लेकिन इसे जाता देख इसका हाथ थामकर वापस खींचा। बात सुनो लड़की, मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। इस रात के बाद मुझे सुकून की नींद नहीं आई, वरना मैं आराम से सो पाया हूँ। यहाँ तक कि मैंने किसी लड़की को भी आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी तलब है। सिर्फ एक रात मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ, और इसका मुआवजा भी दूंगा। मैं तुम्हें जितनी कीमत मांगोगी इतनी दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से एक बार मेरी बाहों में आ जाओ। मैं जोर जबरदस्ती का कायल हरगिज नहीं हूँ। लड़कियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इन्हें छूते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों में गुस्से या फिर पुरानी बात दिल में रखकर मैं कुछ नहीं करता, बल्कि बस सब कुछ भुलाकर इनमें हसीन लम्हात को एंजॉय करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस एक रात मेरे साथ एंजॉय करो। इसकी कीमत में तुम्हें सूद समेत चटाक आज के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा तमाचा इसे अंदर तक हिलाकर रख गया। यकीन से इस छोटी सी लड़की से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो गुस्से से इसे घूरती ये भी बुला चुकी थी कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़ी है। तुम बेगैरत आदमी, मेरी कीमत लगाओगे? तुम हो गया, तुम्हारी औकात क्या है? हर लड़की को अपने जैसा समझ रखा है क्या, या इन जैसा समझ रखा है जिनके साथ तुम दिन रात उठते बैठते हो? अपने घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ एक लम्हा भी बर्बाद करूंगी? तुम जैसे पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। इससे पहले कि मैं चौकीदार को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊं, दफा हो जाओ अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरी नजरों के सामने से। वो गुस्से से पागल होते बोल रही थी जब इसके इस सारे तमाशे को देखते हुए पियून प्रिंसिपल के ऑफिस तक जा पहुंचा था। पूरी यूनिवर्सिटी में तमाशा लगा हुआ था, हर कोई इसे देख रहा था। हर नजर इसे अपना तमाशा देखती महसूस हुई। इसका बस नहीं चाह रहा था वो इस लड़की को जान से मार डाले, जो अपने आप को शायद इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की समझती थी। कारब शायद जो चीज़ चाहता है इसे हासिल करता है, और तुम अब से मेरी चाहत नहीं मेरी जिद हो। तुम्हें हासिल करके तुम्हारी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। बहुत बुरा किया तुमने लड़की, तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कारिबशा क्या है। तुम्हें कारिबशा के मुंह पर थूकना तक अपनी तौहीन लगता है ना, तो अब सारी जिंदगी इसी शक्ल को देखोगी। तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारने की चाहत थी, लेकिन अब जिंदगी की हर रात तुम मेरी बाहों में गुजारोगी, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। लेकिन अब से तुम पर कारिबशा की मोहर लग चुकी है। अब से तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। वो बेहद सुर्ख आंखों से सकूता चैलेंज कर रहा था, जबकि हुरुलैन का बस नहीं चल रहा था कि इसे धक्के मारकर यूनिवर्सिटी से निकाल दे। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब कुछ कोई मुझे बताएगा? प्रिंसिपल भागते हुए इस जगह पहुंचे थे जहाँ ये सारा तमाशा लगा था। सर, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आदमी यहाँ आकर तमाशा लगा रहा है। वो हुरुलैन के साथ बदतमीजी कर रहा है। हुरुलैन तो इसे ये जानती भी नहीं है। प्रिंसिपल को देखकर हूर के ख्याल से इसकी सहेली ने
इसे थामते हुए सर को सिचुएशन बताई, जबकि सर तो इसे देखकर ही जान चुके थे कि ये लड़का कौन है। लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का तमाशा लगाना इतनी भी नॉर्मल बात नहीं थी। बेटा आप जाओ, लोग जाओ यहाँ से अपनी अपनी क्लासेस में। सबको देखते हुए नई क्लास की तरफ भेजने लगे तो हूर से घूरते हुए अपनी क्लास में जा चुकी थी, ये सोचे बगैर कि ना जाने आगे क्या होने वाला था। कारिब शाह का गुस्सा इसका चैलेंज करना इसे अजीब नहीं लगा था, क्योंकि इस तरह के लड़के इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन इसे डर था कहीं ये बात घर तक ना पहुंच जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कारिब, क्या तुक बनती है एक लड़की की यूनिवर्सिटी में जाकर तमाशा करने की? तुम जानते हो हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, हमें वहाँ यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। जिंदगी में पहली बार इतनी तौहीन महसूस की है मैंने। किस चीज़ की कमी थी तुम्हें? किस लड़की की कमी थी तुम वहाँ जा आ पहुँचे? आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में कि तुम्हें हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया? बाबा जान बेहद गुस्से से इसे कह रहे थे, जबकि इसे जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। सोफे पर सर झुकाए बैठा था। मुझे वो लड़की चाहिए बाबा, हर कीमत पर चाहिए। मैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए। अचानक वो उनके सामने खड़ा जुनूनी अंदाज में बोला था। सुल्तान साहब को अपना बेटा बड़ी मुश्किल में डाल गया, क्योंकि इसका रिश्ता बचपन से ही तय था और वे इसकी शादी वहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि कारिब खुद भी अपने बाबा की पसंद से शादी करना चाहता था, लेकिन अब इसका यूं किसी लड़की की डिमांड करना इन्हें परेशान कर गया। लेकिन इन्हें अपने बेटे की ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं था। कारिब क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछने लगे। इसका दिल चाहा कि वो कह दे वो इससे मोहब्बत नहीं बल्कि बेतहाशा नफरत करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो इसे लड़की चाहिए थी और कोई भी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसने हाँ में सर हिलाया तो कुछ फासले पर खड़ी इसकी माँ ने हैरानी से इसे देखा। वाह, इनका बेटा भी किसी से मोहब्बत कर सकता था। बस ठीक है, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो हम तुम्हारी शादी इसी से करेंगे। हम आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे, इसे तुम्हारी दुल्हन बनाएंगे। लेकिन सुल्तान साहब, आपने तो अकबर साहब की बेटी। खामोश हो जाओ बेगम, तुमने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? इसे इस लड़की से मोहब्बत है और हम अपने बेटे की मोहब्बत में रुकावट हरगिज नहीं चाहते, और जिससे चाहेगा इससे शादी करेगा। तैयारी करो शादी की, हम आज ही रिश्ता लेने इसके घर जाएंगे। रिश्ते के लिए इसको तैयार करो। हमारी बहू के लिए महंगे से महंगे कपड़े और जेवरात बनाओ। कपड़ों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि दूसरी बार एक जोड़े को पहनने के लिए हमारी बहू को एक साल इंतजार करना पड़े। आखिर वो हमारे बेटी की पसंद है, इसे शहजादी बनाकर लाएंगे। सुल्तान शाह की हुक्म के साथ ही हवेली में तैयारियां शुरू हो गई। इस वक्त सिर्फ रिश्ता ले जाने की बात की जा रही थी। हवेली में शादी का सामान था। ना जाने इस शादी पर हवेली में क्या क्या होने वाला था। आज इतवार का दिन था। इसने सुबह उठते ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। घर के छोटे बड़े कामों में के साथ कपड़े धोना भी इसकी जिम्मेदारी थी। आयमा समेत मामू की सारी औलादें अभी तक बिस्तर तोड़ रही थी, जबकि वो अपना आधा से ज्यादा काम कर चुकी थी। मामी जान को उठते देखकर इसने फौरन ही नाश्ता बनाकर इनके सामने रखा। आज फिर वो इन्हें शिकायत का कोई बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वैसे भी आजकल इनके तीरों के रुख इसी की जानिब थे। आयमा का रिश्ता टूटने के पीछे उन्होंने तो सिर्फ इसे ही वजह करार दिया था। वो मजीद इसके तानों को निशाना ना बनने इसलिए यही कोशिश कर रही थी कि मामी की आवाज़ से पहले इसका काम हो जाए। घर के काम निपटा कर वो इसे देखते हुए पूछने लगी, घर के काम निपटा दिए? जी तकरीबन सारे ख़त्म कर दिए, बस थोड़े से कपड़े रहते हैं धोने के लिए। बाकी आयमा वगैरह जाग गई तो इनको नाश्ता दे दूंगी। आप नाश्ता करें, मैं तब तक दाल रख लेती हूँ गलने के लिए। मामी जान कह रख के गए हैं कि शाम को दाल चावल बनाऊँ। बातों बातों में इन्हें ये भी बता चुकी कि मामू जान का पर जा चुके हैं। आजकल इनकी दुकान पर भी काफ़ी मसले चल रहे थे। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से दुकान पर से सारा सौदा ख़त्म हो चुका था और वो और ज़्यादा सौदा डलवा भी नहीं सकते थे। इसलिए आजकल इनकी औलादों के मूड भी ऑफ ही रहने लगे थे, क्योंकि एक दिन के बाद घर में दाल पक रही थी। इस वक्त भी दाल का नाम सुनकर मामी ने खाना छोड़ दिया। हद है, मेरे बच्चे तो अच्छे खाने को तरस गए, रोज़ अधूरा खाना छोड़ देते हैं। इन्हें तो होश नहीं दुनिया जहान का, बस अपनी दुकान में लगे पड़े हैं। रोज़ बच्चों का दिल ख़राब होता है, लेकिन यहाँ किसी परवाह है। यहाँ तो भांजी और मामू मेरी औलाद को भूख से मारेंगे। मामू कह रहे थे कि कुछ दिन बाद अच्छा खाना बना लेंगे। आजकल दुकान पर सौदा ख़त्म हो गया है, डलवाने के पैसे नहीं हैं, तो लोग कर्ज लेकर गए हैं। इन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए, इसलिए कुछ दिन तक गुजारा करें, बाद में चुप रहने दे। मामू की चमची जा जाकर अपना काम निपटा, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। आप गुस्से गुस्से घूरती हुई बोली थी तो हुरुलैन इनके सामने से बर्तन उठाती किचन की जानिब चलेगी। मामू की औलाद और बीवी तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो मामू के लिए कुछ करना चाहती थी जिससे इनकी मदद हो जाए, यानी
यही वजह थी कि इसने मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाने की हामी भर ली थी। मामी तो काफ़ी अरसे से ही कह रही थी अगर 4 जमातें पढ़ ली हैं तो कुछ फ़ायदा भी दो। मामू राज़ी नहीं होते थे कि कोई काम नहीं करवाना चाहते थे। घर के काम काज करती है इतना ही काफ़ी है। लेकिन अब इसने सोचा था कि मामू की मदद के लिए थोड़ा बहुत हाथ बटाने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसलिए इसने सुबह सुबह ही अपने सारे काम भी ख़त्म कर लिए ताकि बाद में सुकून से बच्चों को पढ़ा सके। मामू क्या मैं अंदर आ जाऊँ? दरवाजे पर खड़े होकर इसने इजाज़त ली। उन्होंने हिसाब किताब की कापी से सर उठाकर इसे देखा और हाँ में सर हिलाया। मामू जान, मैंने मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू की है तो इनकी वालदा आज मुझे ये पैसे दे के गई हैं। मैं जानती हूँ ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाए। अपनी मुट्ठी में दबाए 12,000 रुपये इनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी तो इसी घर में रहती है, इसका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। रोज़ बच्चे आते हैं, कभी एक चीज़ तोड़ जाते हैं तो कभी दूसरी तोड़ जाते हैं। मैंने तो कभी आवाज़ तक नहीं उठाई कि लोग ये ना कहें कि भांजी को ऊंची आवाज़ में डराती है। खैर छोड़े इन सब बातों को, मेरा रोना धोना तो लगा ही रहेगा। आप ये पैसे पकड़े और ये भी दुकान में डाल दें। वैसे भी बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं, सिर्फ अकेली मैंने ये नहीं सर खपाती है, इनके साथ हम भी सर खपाते हैं। इससे पहले कि मामू कुछ कहते, मामी ने वो पैसे अपने भी हिसाब किताब के पैसों के साथ रख चुकी थी। मामू ने एक नज़र इसको देखा और मुस्कुरा दिए। अगर इनकी बीवी इतनी जल्दबाज ना दिखाती तो यकीनन इससे ये पैसे ना लेते। वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। अपनी औलाद की ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में वो अक्सर इसकी ज़ात को नज़रअंदाज कर देते थे। वो इनसे कभी भी कुछ नहीं मांगती थी। ईद के ईद वो खुद ही इसके लिए जो लाते वो मुस्कुरा कर कबूल कर लेती। शायद आज वो इन्हें यहाँ रहने और खाने की कीमत अदा कर चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत वो दिन रात गालियों खा के इनके घर मुलाजमों की तरह काम करके अदा करती रहती थी। इससे पैसे लेते हुए कितना शर्मिंदा थे वो इसे किस तरह बताते। छोटी सी गली में इनकी बड़ी सी गाड़ी का जाना तकरीबन नामुमकिन था। मोहल्ले के बच्चे झांक झांक कर इनकी गाड़ियों को देख रहे थे, बल्कि अब तो बड़े भी हैरानी का मुजाहरा कर रहे थे। हुरुलैन नाम की कोई लड़की रहती है यहाँ आसपास? इनके मुलाजिम ने गाड़ी से निकलते हुए एक आदमी से पूछा। हाँ जी, हुरुलैन तो मुदस्सर की भांजी है। आपको भला इस बच्ची से क्या काम? बड़ी नेक बच्ची है जनाब, वो तो हमारे मुदस्सर साहब की भांजी है, बेचारी यतीम है, अपने मामू के साथ यहाँ पर रहती है। वो आदमी काफ़ी हैरानी से इसके सवाल का जवाब दे रहा था। तो कभी हुरुलैन को याद करते इनकी तारीफ़ करने लगता। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में? ये तो मोहल्ले के सब लोग जानना चाहते थे। आप हमें इनके घर का तक पहुँचा दें। हम इनकी भांजी हुरुलैन का रिश्ता जागीरदार कारपशा के लिए लेने आए हैं। मुलाजिम से तफसील बताई तो वह जैसे हैरानी से कभी मुलाजिम को तो कभी बड़ी सी कार को तो कभी कार के काले शीशों के अंदर बैठे इस मगरूर आदमी को देखने लगे। हाँ जी जनाब, ज़रूर जाएं, बहुत नेक बच्ची है, माशाल्लाह से हरफन मौला है, मेरे बच्चों को पढ़ाती भी है, मोहल्ले की बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। इसकी तारीफ़ करते हुए वो रास्ता बताने लगा तो रज़िया बेगम जो सुल्तान साहब के पीछे पीछे चल रही थी, अपने होने वाली बहू की तारीफ़ सुनकर खुश हो रही थी। यकीनन इसके मोहल्ले वाले इसकी इतनी तारीफ़ करते थे तो लड़की भी खुद भी बहुत अच्छी होगी। आए जनाब, यही घर है। वो एक छोटे से दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बोला। सुल्तान साहब ने इस छोटे से दरवाजे को देखा, अफसोस से नाम में सर हिलाया। इसकी होने वाली बहू यहाँ से जाने वाली थी। खानदान में अच्छी खासी बातें बनने वाली थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए ये भी करने को तैयार थे। जनाब आप चलकर अंदर बैठे, मैं दुकान से मुदस्सर को बुला कर लाता हूँ। पास इसकी दुकान है, अभी आ जाएगा। आप चले अंदर, मैं भाभी को बताता हूँ आपके बारे में। अरे भाभी बाहर निकलें, बाहर आए, बच्ची के रिश्ते के लिए लोग आए हैं, बहुत बड़े घर से लगते हैं। वो किचन से दाखिल होते मामी से बोले तो रिश्ते का नाम सुनकर वो फ़ौरन सर पर दुपट्टा लेती मुस्कुराते हुए बाहर आते हुए इन्हें सलाम करने लगी। आए जनाब बैठे। वो अपने सामने खड़े काफ़ी अमीर करीब इंसान को देखते हुए खुशामदी अंदाज में बोली थी। रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए उनके पास चारपाई पे बैठ गई, जबकि सुल्तान शाह साहब के लिए इस तरह की किसी जगह पर बैठना तो तहीन था। हम ज़्यादा देर के लिए नहीं आए, हम बस बच्चों के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हमारा एक बेटा है कारब शाह, हमारी सारी जायदाद का वारिस, और इनकी ख्वाहिश है कि आप लोगों की भांजी हुरुलैन, हम अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपके घर आए हैं। हम आपकी बेटी, मेरा मतलब है भांजी का रिश्ता लाए हैं अपने बेटे जागीरदार कारब शाह के लिए। आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद है। अगर आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है या इसकी कोई मंगनी निकाह हो चुका है तो इसे ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ बात हमारे बेटे की पसंद की है, इसकी ख्वाहिश की है। इसकी हर ख्वाहिश पूरा करना हमारा हम अपना फ़र्ज समझते हैं। वह यूं ही खड़े अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे, जबकि मामी जान का सारा ध्यान तो इनके घर से आने वाले सामान की तरफ था। मामू जान ने जब घर में कदम रखा तो हर तरफ कपड़े और जेवरात से भरी थाल थी।
फल फ्रूट कपड़े जेवरात हर वो चीज़ जो शायद ऐसे अमीर लोग रिश्ता लाते हुए लेकर आते होंगे मौजूद थी। हमें किसी किस्म का जहेज नहीं चाहिए, वैसे भी आप लोग दे ही क्या सकते हैं, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। शादी का सारा खर्चा हम ही करेंगे क्योंकि ये जागीरदार कारिब शाह की शादी है, किसी आम इंसान के नहीं। बारात आपके छोटे से घर में तो नहीं आ सकती, इसलिए बारात कहाँ आनी है ये भी फैसला हम खुद ही कर लेंगे। आप बस बात पक्की करें। तारीख निकालें और एक नज़र मुदस्सर की तरफ देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। अरे ऐसे कैसे रिश्ता दे दें, हमें सोचने समझने का मौका तो दें। हमें क्या पता आपका बेटा कैसा है कैसा नहीं, अभी तक तो हमने अपनी बेटी से भी नहीं पूछा। मामू जान ने आगे बढ़ते हुए उनसे कहा था, जो अपनी दौलत में गुरूर में इनके गरीब खाने की एक चारपाई पे बैठना अपनी तौहीन समझते थे। आपकी मुलाकात के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है कि आपके घर का दामाद हमारा बेटा जागीरदार कारिब शाह होगा। इन्हें देखते हुए वो कहने लगे थे, तो इससे पहले कि मामू जान कुछ भी कहते मामी जान बीच में आकर बोल पड़ी थी। जनाब काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। आप जैसे बड़े लोगों का हमारे गरीब खाने में रिश्ता लाना तो कोई आम बात तो हरगिज़ नहीं है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बच्ची को इस काबिल समझा। बाकी आप जिस तरह बेहतर समझे हमें मंजूर है। शादी का खर्चा आप उठाएंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप जहाँ चाहें बारात लाएं, हम अपनी दुल्हन लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। जहेज़ में हमने बनाई तो थी इसके लिए कुछ चीज़ें, लेकिन आपकी मर्ज़ी। आप जैसे बड़े लोग कहाँ हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहेंगे। हम अपनी ख्वाहिश अपने दिल में दबा लेंगे। आप जब मुनासिब समझें तारीख लेने आ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं और ना ही हूर को एतराज़ होगा। ना तो इसे किसी से मोहब्बत है, ना ही कहीं पर हमने इसका रिश्ता कर रखा है। मंगनी निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी बेटी बिल्कुल कंवारी है। मामी ने चालाकी से बीच में आकर इसकी बात ही ख़त्म कर दी थी, वरना मामू जान इतनी जल्दी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरना चाहते थे। लेकिन मामी अपनी चालाक निगाहों से इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि शगन में आए जेवरात बिल्कुल असली हैं, और अगर ये सब कुछ मामू की गलती की वजह से वापस चला जाता तो वो सिर्फ लम्हों के लिए ही अमीर होते। मामी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। हुरुलैन इस घर में आकर इन पर कभी बोझ नहीं बनी थी और ना ही जाते हुए कभी बोझ बन रही थी। इन लोगों की किसी किस्म के जहेज़ का लालच नहीं था। जो खर्चा शादी पर होने वाला था वो खुद ही करने वाले थे, तो भला इनको शादी पर क्या एतराज़ हो सकता था। बल्कि वो तो खुश थी कि इस मुसीबत से जान छूटेगी, वो भी मुफ्त में। ये अलग बात है कि इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी का रिश्ता किसी बड़े घर में हो जाए, लेकिन इनकी बेटी थी ही निकम्मी, जानती ही नहीं थी कि ऐसे अमीर गरीब लड़के फैशन से नहीं बल्कि सादगी से फंसाए जाते हैं। हुरुलैन तो बड़ी तेज़ निकली थी। कितनी आसानी से इसने एक अमीर गरीब आदमी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। न जाने से कितनी बार मिली थी, न जाने कितनी बार इज़हार मोहब्बत हुआ था कि वह लड़का इसके लिए इतना पागल हो गया था कि लेकिन हाथ बड़ा हमारा था हुरुलैन ने। हमारे बेटे की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द शादी की जाए। आप अपनी बेटी से बात कर लीजिए, हम कल ही निकाह के लिए आएंगे। इसी हफ्ते रुश्ती के बाद हम अपनी बहू को यहाँ से ले जाएंगे। वो मुकम्मल बात बताते मामू जान और उनके छोटे से घर पर एक निगाह डालते वापस जाने के लिए निकल गई। इनके पीछे ही रज़िया बेगम खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकली थी। बहुत छोटी जगह है, आपके बेटे ने निगाह उठाई है बेगम। हमें अफसोस है कि अब इन 2 कौड़ी के लोगों में हमें हमारी बहू तलाश करनी पड़ेगी। जहाँ हमारी गाड़ी तक नहीं गुजर सकती, वहाँ हमारा बेटा शादी करने के लिए आया है। सफ़र शुरू होते ही वो रज़िया बेगम को मुखातिब करते हुए बोले थे, समझ सकती हूँ शाह साहब, लेकिन ये हमारे बेटे की ख्वाहिश है जिसे पूरा करना पड़ेगा, वरना आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है कि इसे अपने अलावा किसी और की ज़ात नज़र ही नहीं आती। रज़िया बेगम ने बात करते हुए निगाहें चुराकर इन्हें मध्यम आवाज़ में बोला था, क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी अंदाज़ा नहीं था कि सुल्तान साहब को किस बात पर गुस्सा आ जाए और फिर वो मुलाजमों के सामने बीवी की इज्जत अफजाई कर दिया करते थे। हमारा बेटा है रज़िया बेगम, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे हम, और वो हर किसी को इसकी औकात में रखता है क्योंकि इनकी रगों में जागीरदारों का खून बहता है। इसका हर फैसला काबिल तारीफ़ है सवाई शादी के फैसले के। हम अपने दोस्त के खिलाफ जाकर अपनी बेटे की ख्वाहिश को पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कल हमारा बेटा हमसे बगावत पर उतर आई। यानी छोटी जगह की छोटी लड़कियों की छोटी सोच को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें यहाँ से ही अपने बेटे को समझाना शुरू करना होगा कि वो अपनी बीवी को इसकी औकात में रखें, और हम जानते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात को ठीक तरीके से समझ जाएगा। वह गुरूर से बोले, इनकी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। यकीनन जिस तरह अपनी बीवी को अपना गुलाम समझते थे, इसी तरह वो अपने बेटे से भी यही उम्मीद रखते थे। अपनी बीवी को अपने पैर की जूती बनाकर रखें, इसे कभी सर पर ना चढ़ने दें, इसे इसकी औकात याद दिलाते रहें।
इसे बताते रहें कि इनकी हवेली की औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं, ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने के लिए नहीं। यहाँ तो इन्हें अपने ही बेटे की ज़िंदगी के बारे में जानने का हक नहीं दिया जाता था। हवेली की औरतों को ना शोहर पर कोई हक था और ना ही औलाद पर। वो तो अपने बच्चों के से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। दरअसल आपकी बेटी का फ़ोन आया था। वो चाहती है कि आप एक बार इससे बात कर लें। वो दरअसल कुछ दिनों के लिए घर आना चाहती है। वो बहुत घबराई हुई है। अभी शादी को चंद ही दिन हुए हैं, इसलिए वो भी बोल ही रही थी कि सुल्तान साहब ने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। बेहतर है कि बेटियां अपना घर बसाएं, ना कि रोज़ बैंके के चक्कर लगाएं। जब हमें लगेगा कि इसे वापस आना चाहिए तो हम एक रात के लिए इसे ले आएंगे। फिलहाल इसके ससुराल वालों को समझने दो। अभी शादी को कुछ ही माह हुए हैं। बेहतर है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर गौर करें, ना कि रोज़ रोज़ बैंके के चक्कर लगाएं। और आप भी फ़ोन पर इससे कम रब्ता रखें। वो बेहद सख्ती से बोल रहे थे, जबकि रज़िया बेगम इनके हुक्म पर सिर्फ सर हिला गईं। और वो कर भी क्या सकती थी। इनकी शादी को 10 माह हो चुके थे। वो सिर्फ 2 बार ही अपने मैके आई थी। उनका बाप चाहता ही नहीं था कि वह वापस आए। अगर चाहे जाने की बात करें तो वो बेटी ही नहीं चाहते थे। कभी कभी तो रज़िया बेगम को लगता था कि जैसे सिर्फ कारब ही इनकी औलाद हो। इनकी बेटी तो सिर्फ इनकी थी। ना तो इसके बाप को इसकी पैदाइश पर खुशी हुई थी, ना ही इसे रुखसत करते हुए दुख। वो तो शायद बोझ थी जो महज 17 साल की उम्र में ही वो अपने सर से उतार चुके थे। ये तो खुदा की करम नवाजी थी कि इन्हें दामाद बहुत अच्छा मिला था, जो इनकी बेटी को बेपनाह चाहता था। बस इसी एक सोच के साथ इनके दिल को सुकून मिल जाता था।